Good morning, students. Today we are there for discussing our second unit, Principles of Management. It has two topics. First one, Principles of Management, Principles and Significance. So beta first topic question is there. The first question of the topic, meaning of Principles of Management. So beta Principles of Management are general and broad guidelines for decision making and behavior of managers. So these are the principles of management that are universally applicable and guide the managers for decision making. So next one is their features and nature. These principles of management are universal nature and apply to the each one type of organization for getting better results. Better features and nature of these principles of management. Number one is universally applicable. First one is universally applicable. These principles are universal in all the universally we can use these principles and or for getting the good results. So number two is their general guidelines. These principles are general guidelines and these are used by the principals for using in the day-to-day activities of the business organization. Then these principles are flexible. Flexible means these principles are, there is not like this कि इन principles को बेटा हमें we have to use as it is. So there is a need of change these principles, so we can change these according to time, according to situation. So these are, we can say these are flexible. तो बेटा क्योंकि जो principles हैं इनको बहुत पहले बनाया जा चुका है और हेनरी फ्योल जिन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं ये, तो उन्होंने इन प्रिंसिपल्स को बड़े मतलब प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट के साथ इनको बनाया गया है, इनकी फाउंडेशन तैयार की गई है. सो जो न्यू मैनेजर्स हैं, जो अपडेट आज के मैनेजर्स हैं, तो बेटा दे कैन यूज दीज प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड दे कैन चेंज अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स. देन बेटा दीज आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन. प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन के द्वारा इनको बनाया गया है. एंड दीज प्रिंसिपल्स आर कंटिंजेंट. एक पॉइंट हमारा कंटिंजेंट कि जो प्रिंसिपल्स हैं इनको आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इनको चेंज किया जा सकता है, इनको यूज किया जा सकता है, सो दैट कि वी कैन गेट द गुड रिजल्ट्स फ्रॉम दीज प्रिंसिपल्स. अब बेटा नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि एक और पॉइंट है मेनली बिहेवियरल. मेनली बिहेवियरल यानी कि जो ये प्रिंसिपल्स हैं बेटा जनरली दीज चेंजेस द बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स. मैनेजर्स का बिहेवियर चेंज करते हैं ये, एंड सो दैट कि जो मैनेजर्स हैं विद द यूज ऑफ दीज प्रिंसिपल्स वो सो दैट कि ज़्यादा अच्छे डिसीजन मेकिंग कर सकें, ज़्यादा जो मतलब अकॉर्डिंग टू टाइम उनको जो अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं उनको फुल्ली वो अचीव किया जा सके. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर सिग्निफिकेंस. सिग्निफिकेंस, इम्पोर्टेंस. तो बेटा मैंने इसमें एक वो बनाया है POSM FM. These are the first point of these significance points. Number one is there provide useful insight to managers. बेटा जो प्रिंसिपल्स हैं वो मैनेजर्स को इंटरनली स्ट्रॉन्ग करते हैं, इंटरनली बूस्ट करते हैं फॉर मीटिंग द चैलेंजिंग जॉब्स, सो दैट कि वो अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सकें, ऑब्जेक्टिव्स को इजीली अचीव किया जा सके, ऑब्जेक्टिव्स को मैक्सिमम अचीव किया जा सके. तो ये उनका एक ऑब्जेक्टिव है. देन सेकंड वन इज देयर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. तो दीज प्रिंसिपल्स आर हेल्पफुल in the optimum utilization of resources because there are two types of resources in any organization. Human resources are there, physical resources are there. तो उन दोनों resources को हमें optimum यानी कि maximum यूज करना है for getting better results. उनको वेस्टेज नहीं होने देना.
Then third is there S, scientific decisions. तो बेटा with the use of these principles जो managers हैं they can take scientific decisions. वो मतलब पुराने old जो decision making करने के उनके methods हैं उनकी जगह पे उनको जो है ना नए scientific decisions लेने हैं और in the achievement of organizational objective ताकि हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर सकें. बेटा नेक्स्ट इज हम मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंटल जो अपनी रिक्वायरमेंट्स है, ये पॉइंट है. दैट मीन्स बेटा आप जानते हैं कि जो हमारा एनवायरमेंट है वो एवर चेंजिंग है, उसमें हमेशा चेंजेस जो है ना अब वो ऐसा कोई भी टाइम नहीं है कि जहाँ पर हमारे एनवायरमेंट में डिफरेंट टाइप के चेंजेस ना आते होंगे. तो देखिए देयर आर सम सोशल चेंजेस आर देयर, ठीक है, सम पॉलिटिकल चेंजेस आर देयर और टेक्निकल चेंजेस आर देयर, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं, वो टाइप के चेंजेस, इकोनॉमिक चेंजेस हैं. तो बेटा उन चेंजेस को वी कैन फेस ओनली दैट चेंजेस विद द यूज ऑफ दिस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. तो मैनेजर्स को इन प्रिंसिपल्स को यूज करना है सो दैट कि उनको इसमें बहुत सारी हेल्प उनको होने वाली है. अब बेटा नेक्स्ट वन इज देयर जो हमारा एक और आपका एफ है, एफ एम, ये हो गया. फर्स्ट वन इज देयर, एक बार रिपीट कर लेते हैं. प्रोवाइड यूजफुल इनसाइट टू मैनेजर्स, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. S1 फॉर साइंटिफिक डिसीजंस एंड M इज देयर फॉर मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंटल जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, एंड M इज देयर मैनेजमेंट और मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड रिसर्च. बेटा जो हमारी ये प्रिंसिपल्स हैं दीज आर हेल्पफुल इन मीटिंग और इन जो आपकी मैनेजरियल बेटा जो नई नई वो है रिसर्च एज देयर, ठीक है, बहुत सारी जो आपकी हमें बहुत सारी खोजें करनी है. तो फॉर दैट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर वेरी मच हेल्पफुल, क्योंकि मैनेजमेंट बेटा रिसर्च के लिए बहुत सारी रिसर्च करनी है. एंड दीज आर द प्रिंसिपल जो 14 प्रिंसिपल्स दिए गए हैं जो कि हेनरी फ्योल के द्वारा दिए गए हैं. तो बेटा प्रिंसिपल्स बिल्कुल हेल्पफुल होंगे फॉर द मैनेजमेंट डेवलपमेंट, फॉर द मैनेजमेंट रिसर्च. तो बेटा वो हमें करना है और फॉर दैट दीज प्रिंसिपल्स मे बी वेरी मच यूजफुल. तो बेटा नेक्स्ट हम आ जाते हैं. देयर आर 14 प्रिंसिपल्स गिवन बाय हेनरी फ्योल. तो फर्स्ट वन इज देयर जिसे बोलते हैं डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क. अब बेटा एक शायद यहाँ पे हम छोड़ गए हैं, फुलफिलमेंट ऑफ सोशल जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, फुलफिलमेंट ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज. दैट मीन्स कि बेटा जो आपकी मैनेजरियल प्रिंसिपल्स हैं इनका एक ऑब्जेक्टिव ये भी है, इनका एक फंक्शन ये भी है कि आपको जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको भी पूरा करना है. इट इज़ आल्सो द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट. दिस इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर कि आपको सोसाइटी को इग्नोर नहीं करना है विद द जो आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, विद द फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इज आल्सो द सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको सोसाइटी को भी केयर करना है. सोसाइटी को फॉर एग्जांपल यू हैव टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी गुड्स एट रिजनेबल प्राइस. ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है और उनको जो एनवायरनमेंट है पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट देना है. तो ये सभी भी हम साथ लेके चलने वाले हैं. तो बेटा जल्दी से हमें देख लेते हैं. देयर आर 14 प्रिंसिपल्स. डिवीजन ऑफ वर्क इज देयर. तो बेटा डिवीजन ऑफ वर्क मीन देखिए जो पूरा एक जॉब है इट इज़ नॉट ईजी और पॉसिबल ही नहीं है कि फुल कंप्लीट जॉब कोई एक ही वर्कर के द्वारा किया जाएगा. तो हियर हमें करना क्या, वी हैव टू डिवाइड द होल वर्क, डिवाइड द होल जॉब इनटू स्मॉलर पार्ट्स and each one smaller part handed over to their expert for making specialization, ताकि वहाँ पे specialization हम ज़्यादा बना पाएंगे. तो then तो ये division of work है बेटा, इससे specialization को बढ़ावा मिलेगा. and when each worker is doing repeatedly one job तो he may be the master of that part of work. और इस टाइप से we can prepare, we can manufacture a masterpiece और जो प्रोडक्ट आपकी नंबर मीन A1 प्रोडक्ट हम बना पाएंगे. सेकंड बेटा आते हैं डिसिप्लिन. डिसिप्लिन बेटा हमें बता रहा है
कि देखिए इन ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन जो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो आपकी एम्प्लॉयमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं, दैट शुड बी फॉलोड बाय सुपीरियर्स एज वेल एज सबऑर्डिनेट्स इन द सेम मैनर। यानी उन सबको इक्वल फॉलो करना है, रूल्स को फॉलो करना है जो उनके एग्रीमेंट्स हैं, तो इसमें कोई भी कंसेशन किसी को नहीं मिलनी चाहिए। ये बोल रहा है डिवीजन ऑफ वर्क। बेटा नेक्स्ट आ जाते हैं हम, आपके पास नेक्स्ट है हम यूनिटी ऑफ कमांड इज देयर। यूनिटी ऑफ कमांड हमें बता रहा है बेटा कि जो ईच एंड एवरी जो एम्प्लॉइज इज देयर, तो ईच एम्प्लॉई शुड रिसीव द ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन बॉस एट ए टाइम। यानी कि हर सबऑर्डिनेट को एक टाइम में एक ही बॉस से ऑर्डर्स आदेश मिलने चाहिए, एंड ही शुड बी आंसरेबल टू दैट। और वो जो आपका एम्प्लॉई है, जो सबऑर्डिनेट है, वो उसी बॉस के प्रति जवाबदेह भी हो, अकाउंटेबल हो, आंसरेबल हो। तो अकॉर्डिंग टू दिस जो अभी हम देख पाए यूनिटी ऑफ कमांड, बेटा इससे क्या होगा, इट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स, इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो बेटा सभी की जो है ना पॉजिटिव एंड नेगेटिव कुछ एक पॉइंट्स हैं कि यदि इन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जा रहा है तो आपको कुछ एडवांटेज होंगे, और यदि इनको अवॉइड किया जा रहा है तो उसके डिसएडवांटेज होंगे, तो वो भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन इज देयर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। बेटा अकॉर्डिंग टू दिस यूनिटी ऑफ डायरेक्शन गिवन बाय फ्योल कि जो आपके वन हेड वन प्लान, अब बेटा हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। वन हेड वन प्लान फॉर द ए ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव। मतलब कोई भी ऐसा एक वो है ग्रुप ऑफ एक्टिविटी जहाँ पे करनी है, लेकिन जिनका ऑब्जेक्टिव सेम है, देयर शुड बी वन डायरेक्टर वन मैनेजर फॉर दैट ग्रुप, एंड फॉर सम अदर ग्रुप द सेकंड और अदर मैनेजर शुड बी देयर। फॉर एग्जांपल बेटा हम ले सकते हैं, सपोज करें इन ए ऑर्गेनाइजेशन, इन ए इंडस्ट्री देयर आर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टू टाइप्स ऑफ जो है व्हीकल्स हैं, वो वहाँ पे मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं, सम टाइम कार्स एंड बाइक्स। तो बेटा जो कार्स की डिवीजन है दैट मे बी डिफरेंट, वो डिफरेंट होनी चाहिए, एंड डिवीजन ऑफ द बाइक शुड बी डिफरेंट, एंड द जो हेड है उनके जो बॉस हैं, जो मैनेजर्स हैं, दैट शुड बी डिफरेंट आल्सो। ऐसा नहीं कि बेटा जो दोनों का जो बॉस है, हेड है, वो सेम पर्सन हो, और सम टाइम यू आर इंटरचेंजिंग ईच अदर, तो दैट इज नॉट शुड बी देयर। अब बेटा नेक्स्ट वन आ जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर बच्चे हमें ये बताने के लिए काफ़ी है कि ए राइट पर्सन शुड बी प्लेस्ड एट राइट जॉब, एंड देयर शुड बी ए राइट प्लेस फॉर राइट थिंग्स आल्सो। ठीक है, मतलब हर व्यक्ति को सही जगह पे नियुक्त करना चाहिए, और हर किसी वस्तु के लिए एक निश्चित प्लेस भी होना चाहिए, और वो वस्तु में और व्यक्ति वहाँ पे बेटा हमें सिचुएटेड भी रखने हैं, उनको वहाँ पे स्थापित भी करना है फॉर द बेटर वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर इज देयर। अब बेटा एक प्रिंसिपल हमारा है जिसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन बच्चे हमें बता रहा है कि इन एनी ऑर्गेनाइजेशन जो अथॉरिटीज एंड जो कम्युनिकेशन है, दैट शुड बी गो इन फ्रॉम टॉप लेवल टू लोअर लेवल। ठीक है, फ्रॉम टॉप रैंक टू लोअर रैंक, तो इस टाइप से उनको चलना चाहिए। जो अथॉरिटीज है, जो कम्युनिकेशन है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इस टाइप से बेटा उनको चलते हैं वो। एंड इट मीन्स जो अथॉरिटीज हैं ऑलवेज दे कम फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और जो हमारी वो है अकाउंटेबिलिटीज हैं जो या फिर आपकी कोई रिपोर्ट्स हैं, दे शुड गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऐसे चलना चाहिए। अब बेटा एक यहाँ पे इसका मतलब वो है एक्सेप्शन है जिसे बोलते हैं गैंग प्लैंक। स्केलर चेन में एक हमारे पास गैंग प्लैंक इज देयर। इट मीन्स बेटा ये इसकी अवहेलना की गई है। स्केलर चेन तो में बोल रहा है कि हमें किसी भी पोस्ट को अवॉइड नहीं करना है, आपको प्रॉपर चेन में उसको चलना है जो ऑर्डर्स हैं। लेकिन बेटा अकॉर्डिंग टू दिस गैंग प्लैंक इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी, कभी इमरजेंसी का टाइम है, कभी आकस्मिक समय, तो हम उन पोस्ट को बीच में से मिस कर सकते हैं। इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल ए पर्सन, ए एम्प्लॉय ऑफ वन ग्रुप, इफ ही वांट्स टू बीट द सेम रैंक पर्सन ऑफ द अदर ग्रुप, तो वो मिल सकता है, एंड विद द प्रायर परमिशन ऑफ देयर इमीडिएट बॉसेज। तो ऐसा कुछ एक गैंग प्लैंक यहाँ पे बता रहा है।
अब बेटा नेक्स्ट वन आ जाते हैं हम जिसे बोलते हैं सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। दैट मीन्स जो हमारे बेटा ऑर्गेनाइजेशनल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, उनको हमें प्रेफरेंस देनी है एट द प्लेस ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। अकॉर्डिंग टू दिस प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड नॉट टू द इंडिविजुअल गोल्स। तो हमें ध्यान रखना है, इट मीन्स बेटा यदि आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव हो जाते हैं विद द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी जो एम्प्लॉइज हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, तो देन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही पूरे हो जाएंगे। देयर इज नो डाउट इन दिस। तो बेटा और हम आ जाते हैं, पॉइंट है हमारा रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन ये बोल रहा है कि जो आपके एम्प्लॉइज हैं दे शुड बी गिवन ए फेयर रेम्यूनरेशन टू ईच एंड एवरी एम्प्लॉय सो दैट कि दे कैन मीट देयर नीड्स प्रॉपरली, मतलब उनको पूरा कर सके। इट मीन्स अच्छी एक गुड सैलरी और वेजेस हमें प्रोवाइड करने ही चाहिए अपने एम्प्लॉइज को। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इट इज सेट। एक प्रिंसिपल है बेटा हमारा प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी हमें ये बताने के लिए काफ़ी है कि दो जितने भी हमारे एम्प्लॉइज हैं, ईच एंड एवरी एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी ट्रीट इन द फेयर मैनर एज जितना भी एज पॉसिबल एंड सो दैट बेटा कि वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इन द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव वो दे सके। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी हमें बता रहा है। नेक्स्ट वन देयर स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल बेटा ये है कि जो स्टेबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉइज है दैट मस्ट बी देयर इन ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन। स्टेबिलिटी मीन वर्कर्स को हमें स्टेबल रखना चाहिए सो दैट कि वो स्टेबल तभी रहेंगे व्हेन दे आर सेटिस्फाइड। तो इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कि इनको सेटिस्फाई रखना जरूरी है सो दैट कि दे कैन वर्क देयर इन ए स्टेबिलिटी मैनर एंड सो दैट कि दे कैन गिव देयर मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन टू द ऑर्गेनाइजेशन। एक प्रिंसिपल पे बेटा हम आ जाते हैं जिसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव बच्चे बता रहा है हमें कि जो प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव दैट इज गिवन बाय हेनरी फ्योल कि जो हमारे वर्कर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, सबऑर्डिनेट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट शुड बी गिवन सम लिबर्टी सो दैट कि दे कैन कंट्रीब्यूट इन मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द प्लान्स। क्योंकि बेटा जनरली जो हमारे एम्प्लॉइज हैं वो केवल उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करते हैं, जनरली उनको प्लान्स को फॉलो करना है, बट अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल कि उनको प्लान्स की मेकिंग में भी हमें शामिल करना चाहिए। और लास्ट में इज देयर एसपीडी कॉर्प्स जिसे बोलते हैं हम कॉपरेशन, प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन। बेटा अकॉर्डिंग टू दिस जो आपकी कोई भी वो है मैनेजमेंट है, मैनेजर्स आर देयर, एक टीम है पूरी वहाँ पे, तो मतलब एक जो मैनेजर है ही शुड यूज वी एट द प्लेस ऑफ आई। इट मीन्स उसको ये कोशिश करनी चाहिए कि टीम स्पिरिट की एक टीम अपनी स्टाइल की उसके पास वो वहाँ पे तैयार हो उसके पास सो दैट कि दे वर्क इन द कॉपरेशन वे। एंड जो मैनेजर है बेटा उसको ये मतलब उसको ये बोलना है कि वी शुड डू दिस, नॉट आई विल डू दिस, आई हैव अचीव्ड दिस, इट इज़ नॉट राइट। तो ही शुड यूज वी एट द प्लेस ऑफ आई। टीम स्पिरिट की जो उसके अंदर एक बेटा थीम होनी चाहिए सो दैट क्योंकि कोई भी मैनेजर ईच वन ए मैनेजर कैन नॉट अचीव एनी ऑब्जेक्टिव, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द टीम वर्क। बेटा इट इज ऑल अबाउट दिस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। Next one is their scientific management given by F.W. Taylor. That is the second part of this principles of management, scientific management principles and techniques. बेटा according to this देखिए जो आपके ये है scientific management, it is not general management। जो आपके F.W. Taylor is there जिन्होंने इस scientific management के वो है फाउंडर हैं और बेटा ये यूएसए के एक बहुत बड़े मतलब चीफ इंजीनियर की पोस्ट इन्होंने अचीव की है फ्रॉम ए जनरल लेबरर, यानी कि ही ज्वाइंड ए ऑर्गेनाइजेशन एज ए लेबरर
and after some time he achieved the post of chief engineer on the basis of his experiments, और जो उन्होंने बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिए हैं, बहुत सारे टेक्निक्स दिए हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट ही अचीव्ड दैट पोस्ट। तो बेटा द नेम इज देयर F.W. टेलर, जिसे बोलते हैं फ्रैंकलिन विंसलो टेलर। फ्रैंकलिन विंसलो टेलर। तो बेटा ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 6 years उन्होंने ऐसा कर दिखाया है कि एक वर्कर से और चीफ इंजीनियर की पोस्ट उन्होंने पाली थी। हाँ बेटा, नाउ वी आर स्टार्टिंग, एक मीनिंग है यहाँ पे साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट दैट इज गिवन बाय दिस पर्सन F.W. टेलर। ठीक है, तो बेटा एक बहुत बड़े ऑथर हैं, बहुत बड़े मैनेजमेंट गुरु हम इनको बोल सकते हैं। तो बेटा ही सेड देयर कि साइंटिफिक मैनेजमेंट इज द एक्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मैन टू डू एंड देन सीइंग इट दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। ये इनकी एक वर्डिंग है जो इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए दिया। इसकी एक परिभाषा डेफिनेशन है कि सबसे पहले हमें ये देखना, एक मैनेजर का काम ये देखना है कि हम वर्कर्स से, अपनी टीम से, अपने एम्प्लॉय से क्या करवाना चाहते हैं, फर्स्ट वन। देन उसके बाद ये देखना कि वो उस काम को बेस्ट, मतलब बहुत अच्छे तरीके से, सर्वोत्तम तरीके से, और चीप होता है कम से कम कॉस्ट में, कैसे उसको पूरा करते हैं। तो इट इज़ द थीम, इट इज़ द बेस ऑफ दिस साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो बच्चे हम इसको शुरू कर देते हैं विद द फीचर्स। तो नंबर 1 बेटा यहाँ पे जो फीचर हम स्टार्ट कर सकते हैं, ब्रिंग्स कंप्लीट मेंटल चेंज, ये ला रहा है ब्रिंग्स कंप्लीट मेंटल चेंज, यानी कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है, बाय द यूज ऑफ दिस साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसके द्वारा एक कंप्लीट मेंटल बेटा चेंज यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस इन्होंने बेटा एक वो दिया है, एक मेंटल रिवोल्यूशन जिसे बोलते हैं, टेक्निक इन्होंने दी है। एंड अकॉर्डिंग टू दैट कि इन ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन, देखिए देयर आर 2 पार्टीज, 2 पार्टीज हैं। नंबर 1 साइड ओनर्स हैं, नंबर 2 साइड आपके वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, सबऑर्डिनेट्स हैं, तो बहुत सारे लोग हैं। तो बेटा देयर आर 2 पार्टीज, तो एक्चुअली दोनों के बीच में फाइटिंग होती है, फाइटिंग ऑफ ऑन द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। वो प्रॉफिट को बांटने को लेके लड़ते रहते हैं हमेशा, और दे वांट, वो चाहते हैं कि जो ओनर्स हैं वो ज़्यादा शेयर चाहते हैं फ्रॉम प्रॉफिट, और दूसरी तरफ जो आपके वर्कर्स हैं वो भी बिना काम किए ही अपनी सैलरीज एंड वेजेस को पाना चाहते हैं। तो बेटा जो ये आपके F.W. टेलर हैं, इन्होंने ये सुझाया है, इन्होंने सजेस्ट किया है कि दे शुड नॉट फाइट ऑन द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट बट दे शुड वर्क फॉर द इंक्रीज ऑफ प्रॉफिट, कि उनको प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। दैट मीन्स जो ओनर्स हैं वो भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए काम करें, एम्प्लॉयज़ को कोऑपरेट करें, उनको सहयोग दें, उनको अच्छी वेजेज एंड सैलरीज दें, ठीक है, उनका एक्सप्लॉयटेशन ना करें। एंड एट द सेम टाइम जो वर्कर्स हैं दे शुड आल्सो डू वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर द एम्प्लॉयज़। मतलब एम्प्लॉयज़ भी ये मान के काम करें कि वो संस्था के लिए काम कर रहे हैं, ना कि ओनर्स के लिए। तो बेटा इफ बोथ विल डू वर्क ऑनेस्टली, यदि इस टाइप से वो काम करेंगे फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑटोमेटिकली आपकी ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ जाएगी, और इस इन दिस वे जब आपको प्रॉफिट्स ज़्यादा होंगे तो देन बोथ विल बी बेनिफिटेड, दोनों को लाभ होगा, नो डाउट इज देयर। तो बेटा ब्रिंग्स कंप्लीट मेंटल चेंज, इसको कंप्लीट मेंटल चेंज करना है, यहाँ पे दोनों के जो माइंड सेट है उनको चेंज करना है, ओनर्स एज वेल एज जो हमारे वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, तो ये काम करना है। नंबर 2 बेटा साइंटिफिक डिसीजंस यहाँ पे आपको लेके आने हैं। साइंटिफिक डिसीजंस विल बी टेकन बाय द मैनेजर्स, नोट द जो आपके ट्रेडिशनल अप्रोचेज हैं उनको हमें हटा देना है। देन डिस्कार्ड ट्रेडिशनल अप्रोच, डिस्कार्ड ट्रेडिशनल अप्रोच मीन जो आपके बेटा ट्रेडिशनल वेज हैं
ऑफ डिसीजन मेकिंग, ट्रेडिशनल वेज ऑफ डूइंग द वर्क, ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क, तो हमें उनको हटा देना एंड वी हैव टू डू फॉर द साइंटिफिक सिस्टम, साइंटिफिक अप्रोच हमें लगानी है जो कि बेटा हेल्पफुल होगी इन द मैक्सिमम अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो बेटा ये काम हमें सभी यहाँ पे करने हैं एंड इन दिस वे दिस मे बी हेल्पफुल फॉर द मैनेजर्स एज वेल एज वर्कर्स की दोनों को उससे लाभ होगा। तो ये बेटा हमें यहाँ पे इसको देखना है। नेक्स्ट वी आर कमिंग देयर, यहाँ पे बेटा कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, प्रिंसिपल्स गिवन बाय टेलर। 4 प्रिंसिपल्स आर देयर। नंबर 1 बेटा साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, फर्स्ट प्रिंसिपल है, इनको ध्यान से करना। प्रिंसिपल नंबर 1 साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। बेटा यहाँ पे क्या करना है कि वी हैव टू यूज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, मीन हमें पुराने घिसे पिटे जो हमारे मेथड्स हैं उनको यूज नहीं करना है, बट वी हैव टू यूज द साइंटिफिक मेथड्स। ये हमें बता रहा है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। देन हार्मनी नॉट इंडिविजुअलिज्म, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड लगा लीजिए, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी मीन बेटा वही सेम जो अभी हमने मेंटल रिवोल्यूशन किया कि आपको अपने माइंड सेट चेंज करने हैं, आपको एक दूसरे को एक्सप्लॉइट नहीं करना है, आपने एक दूसरे का गला नहीं काटना है, आपको एक दूसरे को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है एंड इन दिस वे यदि आप एक दूसरे को आगे बढ़ाएंगे तो आप दोनों ही आगे बढ़ जाएंगे, देयर इज नो डाउट। तो ये हार्मनी हमें बता रहा है, कोऑपरेशन हमें बता रहा है, तो हमें ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। तो बेटा कोऑपरेशन से काम करना है। हेनरी फ्योल ने भी ये बताया है कि एसपीडी कॉप्स कोऑपरेशन आपके लिए बहुत जरूरी है फॉर द अचीवमेंट ऑफ, जहाँ पे ग्रुप गोल्स आर देयर। बेटा जहाँ पे जो हमारे जनरल गोल्स हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हमें जो है ना कोऑपरेशन इज वेरी नेसेसरी। यहाँ पे भी हमें देखना है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अब बेटा नेक्स्ट लास्ट वन इज देयर कि हमें जो अपने एम्प्लॉइज हैं तो हमें उनको मतलब वी हैव टू ट्रेन दैट एम्प्लॉइज फॉर ग्रेटर कंट्रीब्यूशन ऑफ देम फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ देयर ज्वाइनिंग, वी कैन से, ठीक है। बेटा हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ देयर एंटरिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन हमें उनकी ध्यान रखना है, उनको ट्रेनिंग जैसे उनको ट्रेन करना है हमें, और जो भी उनके लिए रिक्वायर्ड है तो सो दैट कि दे कैन कंट्रीब्यूट मैक्सिमम फॉर द अचीवमेंट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, दैट ग्रुप गोल्स, और जो वहाँ के लक्ष्य हैं उनमें अपना ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग वो दे सकें। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन पे आते हैं हम, जहाँ पे हमें कुछ टेक्निक्स दी गई हैं। तो टेक्निक्स नंबर 1 हमारे पास है बेटा टेक्निक नंबर 1 फंक्शनल फोरमैनशिप। फर्स्ट वन इज देयर फंक्शनल फोरमैनशिप, FF। बेटा ये हमें बता रही है कि इन ईच एंड एवरी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसको बेटा हमें 2 भागों में डिवाइड कर देना है। यहाँ पे हमारे पास फैक्ट्री मैनेजर इज देयर, ठीक है, फैक्ट्री मैनेजर। एक हमें बनाना है बेटा ऑफिस लेवल और एक हमें बनाना है फैक्ट्री लेवल, ठीक है, ऑफिस एंड फैक्ट्री। और हमें यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कुछ चेंज करना होगा, वो चेंज ये है, देखिए अब बेटा यहाँ पे हमें ध्यान ये रखना है कि जो हमारे हेनरी फ्योल है, ही हैज़ गिवन ए प्रिंसिपल दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड। उन्होंने यूनिटी ऑफ कमांड पे जोर दिया, दैट मीन्स कि एक वर्कर को एक टाइम में एक ही बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू द हेनरी फ्योल। बट अकॉर्डिंग टू दिस F.W. टेलर, बेटा ही हैज गिवन 8 टाइप ऑफ बॉसेज, 4 इन द ऑफिस लेवल एंड 4 इन द फैक्ट्री लेवल। इट इज फंक्शनल फोरमैनशिप, जिन्होंने स्पेशलाइजेशन को मेन वो किया, फोकस किया। तो बेटा दीज 4 लेवल जो ऑफिस के हमारे वो मैनेजर्स हैं, वो जैसे कि यहाँ पे हम लगा लेते हैं टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क इज देयर, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क इज देयर, ठीक है, और एक अपना डिसिप्लिन ऑफिसर इज देयर। तो वो लोग हैं यहाँ पे जो कि ऑफिस के मैनेजर हैं,
एंड ईच वन ऑफ दीज जो आपके 4 मैनेजर्स हैं एंड 4 ऑफ फैक्ट्री मैनेजर्स, बेटा ये 8 लोग दे विल सुपरवाइज द वर्कर्स। दैट मीन्स बेटा जितने भी वर्कर्स हैं, देखिए यहाँ पे सभी वर्कर्स हैं हमारे, तो इन वर्कर्स के ऊपर दीज 8 मैनेजर्स आर जो सुपरविजन्स वो उनको करना है। और इसी टाइप से 4 यहाँ पे बेटा हमारे जो वो है सुपरवाइजर्स है, गैंग बॉस इज देयर, स्पीड बॉस इज देयर, रिपेयर बॉस इज देयर एंड आपका एक इंस्पेक्टर इज देयर। तो वो 4 लोग यहाँ पे हैं, 4 यहाँ पे हैं। तो टोटल 8 जो ऑफिसर्स हैं दे आर देयर फॉर गिविंग सुपरविजन टू द वर्कर्स। तो इन्होंने यूनिटी ऑफ कमांड को बेटा ये मतलब यहाँ पे क्लैश किया जा रहा है, तो ये उसका मतलब एक अपोजिट है यहाँ पे। तो फर्स्ट टेक्निक इज देयर फंक्शनल फोरमैनशिप। सेकंड पे आते हैं बेटा, सेकंड है हमारा एक हमारा टाइम स्टडीज देयर। टाइम स्टडी ने हमें बताया कि बेटा जो हमारा एक प्रॉपर टाइम, रिक्वायर्ड टाइम कितना लगना चाहिए फॉर द अचीवमेंट, फॉर द कंप्लीशन ऑफ ए पार्टिकुलर जॉब, हाउ मच स्टैंडर्ड टाइम शुड बी देयर। तो उसको स्टडी करना है और सो दैट कि हम ये देख सकें कि एक्चुअल में हमारे वर्कर्स कितना टाइम लगा रहे होंगे। तो टाइम स्टडीज देयर। देन बेटा मेथड स्टडीज देयर, जहाँ पे हमें एक बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग ए पार्टिकुलर जॉब उसको सिलेक्ट करना है, सो दैट आवर ऑल द वर्कर्स यूज दैट बेस्ट मेथड। तो यहाँ पे एक मेथड स्टडीज देयर। एक बेटा मोशन स्टडी है, इनके द्वारा दी गई है, FW टेलर के द्वारा। मोशन स्टडी के अकॉर्डिंग बेटा जो मशीन्स एंड जो वर्कर्स हैं कि उनको जो है ना हमें बेटा उनके एक्टिविटीज़ को स्टडी करना है कि व्हाट आर द एक्टिविटीज़ दे आर डूइंग एट द टाइम ऑफ वर्क, सो दैट इसके एक ऑब्जेक्टिव ये है ताकि बेटा जो अननेसेसरी वहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं उनको रिमूव किया जा सके, उनको एलिमिनेट किया जा सके एंड दे विल डू ओनली द नेसेसरी एक्टिविटीज़। और एक लास्ट बेटा इनकी स्टडी है जिसे हमें बोलना चाहिए फैटिग स्टडी। यहाँ पे हमें देखना है कि रेफर टू दैट स्टडी अंडर विच ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स, जो हमें यहाँ पे डिस्क्राइब करनी है, यानी कि वर्कर्स को ड्यूरिंग द टाइम, ड्यूरिंग द वर्क उनको कितनी कितनी ड्यूरेशन के और कितनी कितनी बार उनको हमें रेस्ट देने की ज़रूरत है। इट इज़ डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ जॉब, इट इज़ डिपेंड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन कि उनको खुद ये सिलेक्ट करना है कि कितनी कितनी टाइम के बाद उनको ब्रेक देना है। एक नेक्स्ट टेक्निक है स्टैंडर्डाइजेशन। अकॉर्डिंग टू दिस कि इन द ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्डाइज्ड जो हमारे बेटा मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन है, स्टैंडर्ड क्वालिटी के रॉ मटेरियल, स्टैंडर्ड क्वालिटी के जो इक्विपमेंट्स हैं एंड स्टैंडर्डाइज्ड मेथड्स, स्टैंडर्डाइज्ड टेक्निक्स शुड बी यूज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी ध्यान रखना है कि ईच थिंग ऑफ द स्टैंडर्डाइज्ड क्वालिटी, फॉर एग्जांपल ISI बार का हमारे जो है मशीन्स होनी चाहिए, इक्विपमेंट्स होने चाहिए, ठीक है, रॉ मटेरियल हमारा अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। दीज आर द थिंग्स। अब बेटा नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं। एक हमारा प्रिंसिपल, एक टेक्निक है सिंप्लीफिकेशन। अकॉर्डिंग टू दिस बेटा ये बोला गया कि इट नीड्स टू पुट एन एंड टू द अननेसेसरी टाइप्स, साइजेस एंड उसकी जो क्वालिटीज़ हैं एंड जो वेट्स हैं, प्राइसेज हैं, उनको हमें हटा देना है। इट मीन्स इन ईच ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे हमें नेसेसरी ज़्यादा टाइप की हमें प्रोडक्शन नहीं करने हैं, सो दैट कि बेटा वो ज़्यादा हमारे को ना कॉस्टली होंगे। देयर इज़ ए मोर नीड ऑफ मोर टाइप ऑफ मशीन्स, लेबर हमें ज़्यादा रखनी होगी, तो इट इज़ नॉट गुड फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो हमें सिंप्लीफिकेशन पे भी ध्यान देना है। एक हमारी टेक्निक है बेटा डिफरेंशियल वेज सिस्टम। डिफरेंशियल वेज सिस्टम हमें बता रहा है कि बेटा फॉर द डिफरेंशिएट द स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ वेज रेट शुड बी गिवन टू वर्कर्स। यानी कि जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको हमें ज़्यादा रेट से वेजेस देना चाहिए, और जो लोग एक स्टैंडर्ड से कम काम करेंगे दे शुड बी गिवन द रेट ऑफ वेजेस एट सम लोअर रेट। तो ये ध्यान रखना है। तो फॉर एग्जांपल एक उनको टारगेट दिया गया कि उनको 20 वस्तुएं तैयार करनी है पर डे। तो बेटा जो लोग 20 तैयार करेंगे, 20 यूनिट्स तैयार करेंगे पर डे, 20 और मोर देन 20, दे शुड बी गिवन वेजेस एट द रेट ऑफ 5 पर पीस। एंड जो लोग 20 से कम करेंगे तो बेटा उनको हमें 4 रुपीज़ पर पीस वी हैव टू गिव द वेजेस।
तो बेटा इससे डिफरेंशिएट हो जाएगा। सपोज करें एक 100 एक 20 बना रहा है, एक 19 बना रहा है, तो जो 20 बना रहा है उसको 20 मल्टीप्लाई 5 वी विल गिव वेजेस 100, और जो 19 बना रहा है 19 मल्टीप्लाई विद 4 हम उसको 76 रुपीज़ देंगे। इट मीन्स देयर इज ए डिफरेंस ऑफ 24 रुपीज़। तो उसने एक वस्तु कम बनाई है एंड उसको 24 रुपया कम मजदूरी मिल रही होगी। तो बेटा ये उनको मतलब एक मोटिवेट करने का तरीका, सो दैट ईच वन वर्कर विल डू वर्क मोर। और बेटा लास्ट इसका है हमारा मेंटल रिवोल्यूशन, जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। मेंटल रिवोल्यूशन मीन आपकी जो दो पार्टीज हैं यहाँ पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ओनर्स एंड वर्कर्स, तो बेटा हमें वो अक्सर दोनों एक दूसरे का गला काटते हैं, एक दूसरे का एक्सप्लॉइट करते हैं, एक दूसरे को नुकसान करते हैं, और फाइनली दोनों को ही नुकसान होता है। बट उनको ऐसा नहीं करना है। अकॉर्डिंग टू एफ.डब्ल्यू. टेलर उनको मेंटली अपने आप को रिवोल्यूशन करना है, अपने माइंडसेट को चेंज करना है, और उनको कंपटीशन नहीं करना है, उनको कॉपरेशन करना है, सो दैट की बोथ विल बी बेनिफिटेड। तो these are the two topics, and now it is finished. Thank you.